Dear students, today we are going to learn the fourth poem of the new syllabus of Standard 12, that is Have You Earned Your Tomorrow, written by the famous American poet of British origin Edgar Guest. At an early age of 14, he had started his writing career. Because of his simple style and optimistic tone, he is known as a people's poet. His poems are very inspiring and motivational. His poem, Have You Earned Your Tomorrow, presents us with a series of probing questions which compels us to introspect ourselves, whether we have done something for the betterment of others or not. The poet says it is up to us whether we will have a better tomorrow or not. It depends upon our present actions. That is why the poet expects us to plan our actions and execute meticulously so that we can have a better tomorrow. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है 12th के नए सिलेबस की फोर्थ पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो, जिसको लिखा है बरतानवी नजात अमेरिकन पोएट एडगार गेस्ट ने। एडगार गेस्ट की पोएट्री हाईली इंस्पिरेशनल है। सिंपल स्टाइल और ऑप्टिमिस्टिक टोन ये इनकी पोएट्री की प्रोमिनेंट फीचर्स के अंदर शामिल है। छोटी उम्र 14 साल से ही उन्होंने अपना राइटिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। ये पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो बौछार करती है रीडर्स के ऊपर सवालात की। सवालात प्रोबिंग है और मजबूर करते हैं रीडर्स को खुद का मुहासबा करने के लिए, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और खुद का असेसमेंट करने के लिए कि आया हमने आज दिन भर की जिंदगी में कोई काम ऐसा किया है जिससे दूसरों का भला हुआ है, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस आई है या नहीं। क्योंकि पोएट का मानना है कि ये अब हमारे हाथ में है कि मुस्तकबिल हमारा अच्छा हो या ना हो। और पोएट का ये भी कहना है कि मुस्तकबिल कैसा होगा ये डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट के एक्शंस के ऊपर। इसीलिए पोएम हमसे डिमांड करती है कि हम प्रेजेंट के एक्शंस को प्रॉपरली प्लान करें और उस प्लानिंग को मेटिकुलसली एग्जीक्यूट करें ताकि मुस्तकबिल हमारा अच्छा बने। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। हैव यू अर्नड योर टुमारो? Is anybody happier because you passed this way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Before we start the explanation of the poem, let's have a look at the title. Have you earned your tomorrow? The title itself is a question. The question is rhetorical in tone. The poet has used two keywords here. The first is earn, the second is tomorrow. Tomorrow is referring to future, and earning is something that requires proper planning and efforts. So we can say that indirectly the title, the poet is asking us that if we want to make our future bright, we must plan our today's action and make efforts. ठीक है, टाइटल के अंदर पोएट ने दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, एक है अर्न और सेकंड है फ्यूचर। टाइटल अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिटोरिकल है। टुमारो सजेस्ट कर रहा है फ्यूचर को और अर्निंग के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें और एफर्ट्स करें। हम कह सकते हैं कि टाइटल में पोएट हमसे डिमांड कर रहा है, हमसे कह रहा है कि अगर हम हमारे मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हैं, ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो हमें आज की एक्शंस को, प्रेजेंट की एक्शंस को प्रॉपरली प्लान कर कर उस पर अमल करना होगा। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा नंबर 1। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड दिस वे? देखिए यहाँ पे पोएट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है एनीबडी। एनीबडी मीन्स any stranger, anyone
whom we have met during the time of day. Anybody? कोई भी अजनबी जिससे दिन में हमारी मुलाकात हुई है, जिससे हमारा इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है. Anybody? एक फ्रेज यहाँ पोएट ने इस्तेमाल किया है, passed his way. Passed one's way मतलब to pass nearby. Passed his way is clearly indicating to our interaction with a stranger. Is anybody happier because you passed his way? The poet asks in the beginning of the poem whether there is any stranger who has become happier because our interaction with him. The poet is indirectly telling us to do some favor to a stranger, to do something for the betterment of him or her. पोइट कह रहा है कि क्या दिन में हमने किसी ऐसे स्ट्रेंजर से मुलाकात हुई है और मुलाकात की वजह से वो स्ट्रेंजर की लाइफ पहले से ज़्यादा खुशियों भरी हो गई है? क्या हम किसी अजनबी शख्स की ज़िंदगी के अंदर खुशियों का सबब बने हैं? एंड व्हेन विल पर्सन्स लाइफ बिकम हैप्पियर बिकॉज ऑफ आवर इंटरेक्शन विथ हिम? डेफिनेटली व्हेन वी विल डू हिम ए फेवर, वी विल डू समथिंग फॉर हिज और हर बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट. यकीनन किसी शख्स की जिंदगी के अंदर खुशियाँ उसी वक्त आएंगी जब हम उसके साथ में कोई फेवर का मामला करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशहाली आए. मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन में पोएट इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू ए फेवर टू अ स्ट्रेंजर. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? अब देखिए, पहले एनीबडी इस्तेमाल किया है, अब एनीवन इस्तेमाल किया है. एनीवन भी रिफर कर रहा है टू अ स्ट्रेंजर. In the second line, the poet asks us whether there is any person whom we have met and spoken remembers us. दूसरी लाइन में पोएट पूछता है कि क्या कोई ऐसा शख्स है, ऐसा स्ट्रेंजर है जिससे आपने दिन के वक्त में बात की है, स्पीक किया है और वो आपको दिन याद करता हो. A question arises here. When does a person remember us after our interaction with him or her? The answer will be definitely when we would talk politely to him or her. यकीनन कोई शख्स हमको याद कब करेगा? हमने किसी शख्स से बात की है और वो शख्स हमको याद कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है. कब होगा ऐसा? जब हम उसके साथ में टॉक करेंगे, बात करेंगे पोलाइटली. तो we can say that here the poet is demanding us to be polite with a stranger. This day is almost over and its toiling time is through. अब देखिए यहाँ पे, this is the only line which contains information. This is the only line which is an assertive sentence. यही एक लाइन है जो assertive है. बाकी सारी जो poem है वो full है rhetorical question से. This day is almost over and its toiling time is through. अब देखिए यहाँ पे पोएट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, toiling time. Toiling is an adjective, time is noun. पोएट ने कहा है कि its toiling time is through. अब ये जो एडजेक्टिव है toiling, ये एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है पर्सन को, ना कि टाइम को. मतलब ये है कि पोएट ने toiling एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है पर्सन को, लेकिन पोएट ने उसका ट्रांसफर कर दिया है पर्सन की बजाय टाइम की तरफ. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पोएट ने एडजेक्टिव का ट्रांसफर किया है. जब पोएट एडजेक्टिव का ट्रांसफर करता है तो उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. मतलब एक थर्ड लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब दूसरा ये कि एक ही आइडिया को पोएट ने अलग अलग वर्ड्स के जरिए बयान किया है. This day is almost over और आइडिया क्या है कि the day is coming to an end. इसी बात को उसने कहा है कि its toiling time is through. Through and over means the same. एक ही बात के लिए पोएट ने अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. मतलब यहाँ पे सेकंड फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने इस्तेमाल की है, tautology. Tautology is a figure of speech in which idea is conveyed using different words of the same meaning. Okay. In the third stanza, the poet gives us an information that the day is coming to an end. The hours are running fast. We have only a little time
to make a positive impact. In the fourth line, the poet asks whether there is any person who is thankful to us because of our action. आखिर में पोएट ने कहा है कि दिन खत्म हो रहा है और हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। पोएट ने फिर पूछा है क्या कोई ऐसा शख्स है जो आपके काम की वजह से आपका शुक्रगुजार बन गया है, थैंकफुल बन गया है। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, उसका लास्ट वर्ड है वे, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टुडे, वेयर हाइम्स विथ टुडे। मतलब ये वे टुडे एक राइमिंग पेयर हो गई। थ्रू यू, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड थ्रू, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड यू, थ्रू राइम्स विथ यू, मतलब सेकंड पेयर है थ्रू यू। हम कह सकते हैं कि इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने राइम स्कीम इस्तेमाल किया है ए बी बी। ओके, लेट्स मूव अहेड। डिड यू गिव ए चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का कंसर्न था हमारे बिहेवियर से कि हम कैसे बिहेव करते हैं स्ट्रेंजर के साथ में। मतलब पोएट इज कंसर्न अबाउट आवर बिहेवियर विद अ फ्रेंड, कि हम दोस्त के साथ में कैसे बर्ताव करते हैं या कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसकी फिक्र है पोएट को। डिड यू गिव ए चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग। अब देखिए अब चेयरफुल ग्रीटिंग, चेयरफुल मीन्स हैप्पी और ग्रीटिंग इज ए पोलाइट वर्ड, इट इज ए साइन ऑफ वेलकम। ग्रीटिंग कैन नेवर बी सैड और हैप्पी। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है चेयरफुल, ये एक्चुअली रिफर कर रहा है टू द पर्सन हु इज वेलकमिंग, हु इज ग्रीटिंग, ना कि ग्रीटिंग को रिफर कर रहा है। मतलब अगेन यहाँ पे पोएट ने चेयरफुल इस एडजेक्टिव का, एपिथेट का पर्सन से ग्रीटिंग की तरफ ट्रांसफर कर दिया है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। पहले देख चुके हैं हम इसको। टू द फ्रेंड हु केम अलोंग। In the second stanza, the poet asks us whether we have greeted a friend who has come to us seeking our help cheerfully, or were we rude to him, saying him just hi and hello, and without paying any attention towards his need and problem, just went away from there. Second stanza की second line churlish एक वर्ड पोएट ने इस्तेमाल किया है। churlish के मानो आता है rude। हाउडी ये एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है, सॉरी इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है। कोई दोस्त, करीबी शख्स, उसको हम जब वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं तो हाय हेलो कहते हैं। अमेरिका में इसी तरह से हाउडी भी इस्तेमाल होता है। और सितंबर 22 को अमेरिका में ह्यूस्टन में एक प्रोग्राम रखा गया था इन ऑनर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी का मतलब होता है वेलकम मोदी, नमस्ते मोदी। तो हाउडी ये इनफॉर्मल टर्म है, जैसे हाय हेलो कहते हैं दोस्त को। सेकंड लाइन में पोएट कहता है कि वेदर वी वेर चेयरफुल इन ग्रीटिंग ए फ्रेंड हु हैड कम टू अस सीकिंग आवर हेल्प, और वेयर वी रूड टू हिम, और वी जस्ट सेड हाय एंड हेलो टू हिम and without paying attention to him just moved away from there. सेकंड स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि कोई दोस्त हमारे पास में आया है मुसीबत के वक्त में मदद मांगने के लिए, तो क्या हमने उसको खुशी खुशी वेलकम किया है या जस्ट फॉर इनफॉर्मली उसको कहा है हाय और हेलो और उसके प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ गए हैं अपना काम करने के लिए। मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं द पोएट इज एक्सपेक्टिंग अस हियर टू हेल्प अ फ्रेंड इन हिज टाइम ऑफ नीड, टू ग्रीट हिम cheerfully and refrain from behaving impolitely with him. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? The poet continues to ask us whether we were selfish with the friend by not paying any attention and any time to him, or is someone mighty grateful for a deed you did today? The poet further asks whether there is a person
who is thankful and grateful to us because of our action. आखिर में पोएट पूछता है, क्या आपने दिन भर में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कोई शख्स, कोई दोस्त आपका थैंकफुल बन गया है, शुक्रगुजार बन गया है? Can you say tonight in parting with the days that is sleeping fast, that you helped a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? अब देखिए थर्ड स्टैंजा में पोएट ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, डेज डेड इज स्लीपिंग फास्ट। डे को ऐसे कहा है एज इफ इट इज पॉसिबल टू रन फास्ट। द आइडिया इज दैट वक्त तेजी से गुजर रहा है, लेकिन पोएट ने कहा है कि दिन तेज भाग रहा है। मतलब ये है कि पोएट ने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है डे को, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक अटैच किया है डे को। मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तीसरे स्टैंजा में पोएट आस्क अ लॉन्गर क्वेश्चन टू द रीडर्स, डिड यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट? द पोएट आस्क दैट द टाइम इज मूविंग फास्ट, the day is coming to an end, whether there is any person out of many you have met whom you have helped. तीसरे स्टैंड में पूछता है कि दिन में बहुत सारे लोगों को आपने मुलाकात की होगी, क्या उन बहुत सारों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसकी आपने हेल्प किया है? Is a single heart rejoicing over what you did or said? अब देखिए यहाँ पे कहा कि is a single heart rejoicing. Rejoice means enjoy करना। पोएट कह रहा है कि is a single heart rejoicing. Heart is a part of a person. Single heart rejoicing मतलब single person rejoicing. Heart here stand for person. The person is whole, heart is part. मतलब ये है कि part is used to refer to a whole. और जब पोएट पार्ट को रिफर करने के लिए होल या होल को रिफर करने के लिए पार्ट का इस्तेमाल करें तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं सिनेक्टॉक। यहाँ पे हार्ट रिफर कर रहा है पर्सन, पर्सन होल है और हार्ट पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोएट ने यहाँ पे सिनेक्टॉक का इस्तेमाल किया है। द पोएट आस्क वेदर देयर इज एनी सिंगल ह्यूमन बीइंग हु इज एंजॉयिंग बिकॉज ऑफ योर एक्शन। Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? In the last line of the third stanza, the poet is asking us whether there is any single person who had lost all hope and became pessimist, but you have interacted with him and gave hope and courage to him to live. आखिर में पोएट पूछता है, क्या कोई ऐसा सिंगल पर्सन भी है जिससे आपकी आज मुलाकात हुई है, जो अपनी जिंदगी से निराश हो गया था, उदास हो गया था, होपलेस हो गया था, पेसिमिस्ट हो गया था, लेकिन आपने उससे बात किया है और उसको इनकरेज किया है, उसको होप दी है, उसको उम्मीद दी है। मतलब ये है कि पोएट इज डिमांडिंग अस टू हेल्प अदर पीपल टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ विच दे कैन एंजॉय देयर लाइफ, और जो उदास हो गए हैं उनको उम्मीद देने की बात कह रहा है पोएट तीसरे स्टैंजा में। डिड यू वेस्ट द डे और लॉस्ट इट, वाज इट वेल और सोरली स्पेंट? अब देखिए यहाँ पे पोएट ने दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज बयान किया है। डिड यू वेस्ट द डे, दिन गुजर गया है, द डे हैज पास्ड अवे। The poet is asking us whether we have wasted the day or did some fruitful during the time of day. क्या आया कोई खास काम हमने दिन के दौरान में किया है या उसको वेस्ट कर दिया है? और lose it, was it well or sorely spent? The poet asks us whether the day was badly spent or well spent. देखिए यहाँ पे sorely रिफर कर रहा है बैडली को। पोएट ने कहा कि जो दिन गुजरा है वो सोरली स्पेंट था, बैडली स्पेंट था या वेल स्पेंट था। वेल स्पेंट और सोरली स्पेंट दोनों अपोजिट है।
अपोजिट आइडिया पोएट ने यहाँ एक्सप्रेस किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हियर द पोएट हैज मेड यूज ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एंटीथेसिस। अब वेल स्पेंट डे किसे कहेंगे और बैडली स्पेंट डे किसे कहेंगे? तो अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे वी हैव डन समथिंग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द अदर पीपल, ओनली देन वी कैन से दैट द डे वाज वेल स्पेंट। ऊपर बहुत सारे बातें पोएट ने हमसे कहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन के जरिए बहुत सारे बातें हमसे पोएट ने कहा है वो काम करने के लिए। कुछ डूज पोएट ने हमसे शेयर किया है और कुछ डोंट्स हमको बताया है। द पोएट हैज आस्क्ड अस टू डू समथिंग एंड टू बी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ काम करने के लिए कहा है और कुछ काम से बचने के लिए पोएट ने कहा है। तो अगर वो काम हमने किए हैं तो पोएट कह रहा है कि हमारा डे वेल स्पेंट है, और वो काम हमने नहीं किए हैं तो हमारा डे बैडली स्पेंट है। अगर हमने किसी की मदद किए है, किसी से पोलाइटली बात किए हैं, किसी दोस्त की उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद किए हैं, किसी नाउम्मीद शख्स को हमने उम्मीद दिए है, तो हमारा डे वेल स्पेंट था। और अगर ऐसा नहीं किए हैं बल्कि हमने किसी के साथ में इम्पोलाइटली बात किए है, कोई काइंडनेस शो नहीं किए है, तो हमारा डे बैडली स्पेंट था। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? In the last two lines, the poet asks us if we are unsure whether the day was well spent or badly spent. At such a situation, we can use one device. The device is to close our eyes in sleep, slumber, and listen the words from God. And after listening the words of God, if we feel it is fine, if we are satisfied, it is okay. Tomorrow is assured. Definitely we will have a better tomorrow. आखिरी दो लाइन में पोएट ने हमसे कहा है कि अगर हमको यकीन ना हो कि हमारा दिन अच्छा गुजरा है, वेल स्पेंट रहा है, या बुरा गुजरा है, बैडली स्पेंट है, अगर इस बात का हमको पक्का यकीन ना हो, तो पोएट ने एक डिवाइस हमको बताया है कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन द वर्ड्स ऑफ गॉड, और गॉड की तरफ तवज्जो दे, उसके वर्ड्स को सुने, उसकी गाइडेंस को सुने। अगर गॉड के वर्ड्स सुनने के बाद में अगर हमको इत्मीनान होता है, इफ इट इज ओके, इफ इट इज फाइन, तो मतलब ये है कि फ्यूचर इज एश्योर्ड, आपका मुस्तकबिल ब्राइट है। ए ब्राइट एंड बेटर टुमारो इज अवेटिंग यू टू एम्ब्रेस। ओके, थैंक यू।